ایران اور امریکہ کی جنگ اس وقت ناظرین کرام انتہائی ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ جس طرح سے ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور امریکی ایسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کل رات جیسا کہ الخرج کے اندر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دل کے بہت قریب سمجھے جانے والی پرنس سلطان جو ایئر بیس تھی، اس کے اوپر بھی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ اب اس حملے کے بعد اب باقاعدہ طور پر ایک تو سعودی عرب جو ہے وہ حرکت میں آیا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو باہمی دفاعی معاہدہ ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، اب اس کے بھی اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب سعودی عرب نے باقاعدہ طور پر یہ سوچنے پر جو ہے وہ ولی عہد محمد بن سلمان مجبور ہو چکے ہیں کہ اگر وہ امریکہ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا فردر جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر اب پاکستان کی خدمات مانگ لی گئی ہیں۔ ایک تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہنگامی طور پر دورہ سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں پر ان کی کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس ملاقات کے اندر کیا چیزیں طے ہوئیں، ساتھ ساتھ پاکستانی فضائیہ، اس کے علاوہ پاکستانی افواج جو ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ انتہائی عام ترین ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ کے دفاعی نظام کے اوپر ہی منحصر رہنا سعودی عربیہ کے لیے ناکافی ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاکستان کھل کر ایران اور امریکہ کی جنگ کی صورتحال کے اندر سعودی عربیہ کے ساتھ میدان میں آ چکا ہے۔ چیزیں اس وقت انتہائی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہو چکی ہیں اور ساتھ ساتھ خوفناک بھی ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیلاً آگاہ کروں گا، لیکن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں آپ نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لازمی کمنٹس کرنا ہے۔ ناظرین کرام، کل جیسا کہ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایران کے خلاف امریکہ اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دے گا۔ یقینی طور پر بڑا ہی ایک یہ جو ہے وہ اچھا انیشیٹو تھا جو کہ سعودی عربیہ کی جانب سے لیا گیا، کیونکہ بارہا ایران جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کر رہا تھا کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان کے اوپر وہ حملے روک دیں گے تب تک جو وہ امریکہ کو اپنی ایئر سپیس جو ہے استعمال نہ کرنے دیں گے۔ لیکن اس صورتحال کے بعد بھی کل رات اچانک سے جو پرنس سلطان ایئر بیس تھی، الریاض جو دارالحکومت ہے، بیسیکلی یہ اس سے تقریباً 70 to 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے الخرج۔ میں چونکہ سعودی عربیہ کافی عرصہ جو ہے وہ رہا ہوئی ہوں، الخرج یہ پرنس سلطان ایئر بیس جو ہے یہ میں نے بخوبی دیکھی ہوئی ہے۔ میرے کچھ فیلڈ یا کام ایسا تھا جو میں یہاں پہ گیا بھی ہوں، میں اچھی طرح سے سمجھتا بھی ہوں کہ جہاں یہ حملہ ہوا ہے یہ انتہائی ایک اہم ترین سعودی عربیہ کی ایئر بیس تھی، سمجھی جاتی تھی، جس میں سعودی فضائیہ، اس کے علاوہ امریکی جو افواج تھیں وہ ادھر جو ہے وہ ان کے زیر استعمال یہ پوری ایئر بیس جو ہے وہ آتی تھی۔ لیکن اس کے اوپر اچانک سے بیلسٹک میزائلوں سے جو ہے وہ حملہ ہو جانا یہ انتہائی ان یوزول ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے قبل اگر دیکھیں تو چونکہ سعودی عربیہ نے بالکل واضح بتا بھی دیا تھا کہ اپنی سرزمین جو ہے وہ امریکہ کو نہیں دیں گے کہ وہ ایران کے خلاف استعمال کر سکے۔ لیکن اس کے بعد اچانک سے پھر حملہ کیوں ہوا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ لیکن اس صورتحال کے اندر سعودی عربیہ اور پاکستان کا آپ کو علم ہے کہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، جس میں چیزیں بالکل واضح طور پر طے ہیں کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوا تو دوسرا ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور نہ صرف کھڑا ہوگا بلکہ اس کا دفاع بھی کرے گا۔ تو اب اس صورتحال کے اندر باقاعدہ طور پر ایک تو پاکستان کی انٹری ہو چکی ہے آلریڈی۔ جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے بالکل اس حوالے سے ایک جو ہے وہ سیشن میں بتایا بھی تھا کہ ایران سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہی پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدہ ہے، زیادہ دیر جو ہے وہ اگر آپ نے اس طرح سے ہی سعودی عربیہ کے اوپر حملے کیے تو پاکستان چپ نہیں بیٹھے گا، پاکستان اس میں ڈیفینیٹلی انوالو ہوگا۔ اب اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں وہ ہنگامی طور پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں خالد بن سلمان، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ بھی شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ میری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ون آن ون ملاقات ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس وقت سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل رابطوں میں بھی تھا، اور پاکستان بھی مسلسل سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطوں میں تھا۔ اس پوری صورتحال کو بخوبی جو ہے وہ جائزہ بھی لیا جا رہا تھا کہ اس کو کیسے جو ہے وہ سعودی عربیہ کو اس تمام صورتحال میں سیف رکھنا ہے۔ اب اس میں ایک تو جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نہ صرف جو ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عرب کے خالد بن سلمان ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ سلمان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ہنگامی ملاقات ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں کہ اس وقت
जो तफसीलात सामने आई हैं वो फिर आपको पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने किस तरह से अब सऊदी अरब का जो कंट्रोल है वो संभाल लिया है, और इस सूरत हाल के अंदर ये अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन चीज़ें हैं, क्योंकि बरहा अमेरिका का एक रूब या जो दबदबा बना हुआ था सुपर पावर का, अब उसका आहिस्ता आहिस्ता कहें कि किस्सा जो है वो तमाम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया को इसके अलावा दीगर खलीजी ममालिक जो हैं इनको जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन जो हैं वो जाकर अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। अब इसमें जी प्रेस रिलीज जो सामने आई है इसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा और शाही खानदान के रुकन शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से आम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई तावन और खिते के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अब इसमें डेफिनेटली ईरान के हवाले से जो तमाम चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। अब इसके साथ साथ ये मुलाकात सिर्फ वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान तक महदूद नहीं रही, बल्कि जो सऊदी बादशाह हैं इनके साथ भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई और पाकिस्तान की जानब से मुकम्मल तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ इज़हार यकजहती दिखाया गया है। पाकिस्तान की जानब से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बताया गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस बहमी दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है, बल्कि क्योंकि हिजाज मुकद्दस या सऊदी अरेबिया के साथ एज ए मुस्लिम जो है वो हमारी वैसे भी एक दिली लगन या हमारे अंदर जो हुब या जज्बा या एक लगन है सऊदी अरेबिया के हवाले से वो डेफिनेटली ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इसमें चूंकि एक बाकायदा तौर पर इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान का एक बाहमी दिफाई मुआहदा है और इस मुआहदे के तहत अब पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर एक तो जी सऊदी अरेबिया का दिफा जो है वो संभालने जा रहा है। ऐसे में एक ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की जानब से वहां पर एक चीनी साख्ता जो डिफेंस सिस्टम है वो तैनात किया गया है। अब इसमें ये पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बेसिकली इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के जितने भी वहां पर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि खलीजी ममालिक के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा असर और रसूख जो है वो अमेरिका का है और इनका झुकाव भी ज़्यादा अमेरिका की जानब है, चाहे कतर हो या कवैत हो या दीगर जितने भी कंट्रीज जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका के अड्डे हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान का एक तो जी दिफाई निज़ाम जो है वो वहाँ पर तैनात किया गया है और ये बात जो है वो सिर्फ दिफाई निज़ाम तक महदूद नहीं, ऑलरेडी भी पाकिस्तान की अफवाज जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं और सऊदी जो फोर्सेज हैं इनको ट्रेनिंग या इसके अलावा दीगर जो कई आम चीज़ें हैं वो भी हो रही हैं। लेकिन ऐसे में इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जानब से अपने ट्रूप्स इसके अलावा पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है वो भी सऊदी अरब भेजने के हवाले से खबर इस वक्त सामने आ रही है और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर कई एक ज़राए जो हैं उन्होंने इस हवाले से ये क्लेम किया है कि एक तो जी न्यूज़ 18 इसके अलावा डॉन या अरब न्यूज़ इसके अलावा यूरोशियन टाइम्स ने अब इस हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान जो है एक तो अपना डिफेंस सिस्टम LY-80 FM-90 एनजा मिसाइल सिस्टम है बेसिकली जो कि सऊदी अरेबिया में तैनात पाकिस्तान की जानब से किया गया और इसके साथ साथ ट्रूप पर्सनल जो फौज की हैं इसके साथ साथ एयरफोर्स और नेवी जो है वो सऊदी अरेबिया के बाहमी दिफाई मुआहदे 2025 में जो दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हुआ था इसके तहत जी पाकिस्तान वहां पर तैनात करने जा रहा है। अब इसमें यह सूरत हाल एक जानब ये चीज़ है, इसमें ये नहीं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ जो है वो इसमें कोई ऐलान जंग करने जा रहा है या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ लड़ेगा, बल्कि इसमें पाकिस्तान न सिर्फ जो सऊदी अरेबिया की सरजमीन है इसकी हिफाजत में तमाम रोल जो है वो अदा करेगा, बल्कि डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान अहम किरदार जो है वो अदा करेगा। अब ऐसे में जो मुलाकातें हुई हैं डेफिनेटली इसमें तमाम चीज़ें ज़ेर बहस लाई गई हैं। एक तो पाकिस्तान अब फिर से जो है वो ईरान के साथ राब्ते करेगा और उनको इस बार ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर करके बताई जाएंगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का बाहमी दिफाई मुआहदा है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन का सिलसिला ईरान की जानब से बरहा सऊदी अरेबिया के ऊपर किया जा रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा और होपफुली क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि सारी सूरत हाल के अंदर देखें कि ईरान की जानब से आल जितने भी खलीजी ममालिक थे वहाँ पर अमरीकी एम्बेसियाँ इसके अलावा अमरीकी जो अड्डे थे इनको निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अमरीका का जो कौंसलेट है अमरीकी जो सफारत खाना है यहाँ पे हमला नहीं किया गया। इसमें ये चीज़ें नहायत आम है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका की जंग के दौरान पाकिस्तान एक तो न्यूट्रल रहा और सेकेंडली पाकिस्तान ने खुलकर जो अमरीका की जानब से ईरान के ऊपर हमला किया गया इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी और ईरान के साथ पाकिस्तान ने खुलकर स्टैंड लिया। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको फर्दर डिटेल से आगाह करूं, इस वक्त पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर एक तो डिप्लोमेसी का आगाज भी कर दिया है। आज़रबाईजान के ऊपर भी ईरान की जानब से जो अपने अर्श टू ड्रोन थे वो दागे गए थे, तो ऐसे में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानब से एक तो आज़रबाईजान के साथ भी रब्ता किया गया है और एक तो आज़रबाईजान के साथ इज़हार यकजहती दिखाई गई है और दो तरफा ताल्लुकात इसके अलावा दीगर चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस लाई गई हैं।
अब इसके साथ साथ जो ईरानी सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, इनकी जी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और ये राब्ता इस सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम इंतहाई आम है। कल जैसा कि मुख्तलिफ इस हवाले से कई सोर्सेज, उसके अलावा अमरीकी जो ओहदेदार हैं वो बारहा इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि ये जो इस वक्त ईरान हमले कर रहा है, ईरान जो हमारे अड्डों को, इसके अलावा हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर या दीगर चीज़ों को टारगेट कर रहा है, ये काम अकेला ईरान नहीं कर सकता। इसमें रूस जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम जो इंटेलिजेंस है, एग्जैक्ट लोकेशन शेयर की जा रही है रूस की जानब से ईरान को, और फिर ईरान इस सूरत हाल के बाद हमारे एसेट्स को निशाना बना रहा है। मतलब इस चीज़ को समझिए कि इस वक्त अमेरिका इस किस्म की चीज़ें जो है या इस किस्म की बातें करता हुई नजर आ रहा है। जो रिटेलिएशन या जो रिस्पॉन्स ईरान की जानब से दिया जा रहा है, इस सूरत हाल में ये चीज़ें भी अब डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें ईरानी सदर मसूद जो है, इनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और रूस ने ऑलरेडी खुल के जो है वो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था इसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। और ये टेलीफोनिक गुफ्तगू इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के अंदर नहायत अहमियत जो है वो रखती है कि रूस जो है उसका क्या स्टांस है, रूस किस साइड पे खड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन की जंग जो है इसको लेकर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, और अमेरिका काफ़ी रूस से नाखुश है। इसके अलावा रशियन आयल्स हो गया या दीगर जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की, वो भी इंप्लीमेंट है अमेरिका की जानब से रूस के ऊपर। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले से बताऊं, एक तो जी इस सूरत हाल के अंदर अमेरिकी साथ जो कंपनियां हैं, अब उनको एक तो फौरी तौर पर ये आर्डर दिए गए हैं कि हमारे जो हथियार हैं वो इस वक्त चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ईरान अपना एक ड्रोन भेजता है, उधर से हमारा जो मिलियन ऑफ डॉलर का जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिकी साथ कंपनियां जो हैं उनको फौरी तौर पर नए हथियार जो हैं, एक तो प्रोडक्शन उनकी जल्दी करने पर जोर दिया गया, और साथ ही साथ कसीर तादाद जो है वो कहा गया कि आप कसीर तादाद में प्रोडक्शन करें। अब इसके हवाले से जो खबर सामने आई है, इसके मुताबिक एक गैर मुल्की इदारा है, इसके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी अपने एक बयान में यह कहा है कि अमेरिकी दिफाई कंपनियों ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिकी असला साज कंपनियों ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना जो है वो बढ़ाने पर इतफाक किया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास कम दर्जे के हथियारों का तकरीबन लामहदूद जखीरा मौजूद है, जबकि कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये पहली दफा अगर कहें कि ऐसी कोई सूरत हाल बनी है जिसमें वो अमेरिका जो ऑलरेडी किसी मुल्क के साथ किसी की जंग लगी होती थी, जैसे यूक्रेन और रशिया की है, तो वहां पर अमेरिका की जानब से असलहा प्रोवाइड किया जाता था कि ये लो असला, इतना लो असला और इस्तेमाल करो। लेकिन अब इसमें चूंकि अमेरिका बराह रास्त और खुद इस जंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, और अब खुद अमेरिका और ईरान के दरमियान एक इंतहाई खौफनाक जंग छिड़ी हुई है, तो ऐसे में देखें तो पहला ये ऐसा मौका होगा कि अमेरिका एक तो खुद अपने हथियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी जितनी भी सूरत हाल बनी, अमेरिका ने हमेशा दूसरों को ही जंग पे उकसाया है या दूसरों को ही हथियार दिए हैं। लेकिन ये पहली नौबत आई है कि जब अमेरिका को खुद अपने हथियारों की ज़रूरत जो है वो पड़ने लगी है, और अब इसी सूरत हाल में हथियार या इसके अलावा दीगर चीज़ें कम पड़ती हुई देख कर, या चीज़ें इस वक्त मतलब किस खतरनाक मरहले तक जा सकती हैं कि मज़ीद पैदावार जो है इसको बढ़ाने पर गौर किया गया है कि जल्दी असला बनाओ और ज़्यादा असला बनाओ। मतलब इस चीज़ को समझिए कि सूरत-ए-हाल इस वक्त कितनी खराब है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करना है। इससे हमें जो है वो एक तो मोटिवेशन मिलती है, और साथ साथ कमेंट्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।